Now the next few characteristics, or we can say terms, which we generally going to use in this whole chapter. We have already done character, trait, factor, gene, allele, dominant, recessive. तो इतना clear हो गया, I believe. Next is phenotype. Phenotype means you can remember pheno can be related with photo. Okay, so photo बोलते ही दिमाग में आता है picture. So if I am saying in my garden the plant is like this, so this in front of you, it's the genotype, how it is presented with the help of the two allele, but these two alleles are talking about the height, right? But how they look, कैसे वो दिखते हैं, that is the external appearance of those plant is the phenotype. Okay, जीनोटाइप मतलब कैसे हम जेनेटिकली वी राइट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ वी रिप्रेजेंट दैट ऑर्गेनिजम्स जीन मेकअप, राइट? देन होमोजाइगस मतलब सिमिलर, कैपिटल टी बोथ आर सेम, राइट? इफ इट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी then it is called as heterozygous. Okay, homozygous मतलब इंडिविजुअल पोसेसिंग आइडेंटिकल एलील, जब एलील सेम होते हैं, ऐसा नहीं है ये दिस वॉन्ट बी होमो, दिस इज गोइंग टू बी हेट्रो, बोथ द एलील्स आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट थिंग्स, बट होमो के अंदर दे आर गोइंग टू बी कैपिटल टी या कैपिटल स्मॉल टी. ओके, देन हेट्रो मीन्स different alleles. Okay, contrasting alleles together, they are present when a person is having contrasting allele, it's called as heterozygous. Example, capital T small t. Pure line tab hota hai when you are crossing the same kind, एक ही quality को हम दोबारा से simple self pollination कर रहे हैं, and it is done for few years, मतलब continuous for few years if you are doing, the result will be without any exception. There won't be any recessive mode. Are you getting that? That's pure line. Let's see this. An individual or group of individual which is homozygous for one or more trait, it is the pure line. मतलब अगर मैंने बोला pure line tall plant, तो automatically आपके दिमाग में आना चाहिए ये. ओके, impure हो जाएगा, so it is capital T small t. So there is a recessive characteristic, so it is not pure line. ठीक है? Then monohybrid, it is heterozygous for one trait and is produced from the cross between two pure plants. So when you're talking about, let's say for example, अगर मैंने क्रॉस किया एक टॉल प्लांट को एक स्मॉल और डॉर्फ प्लांट को मैंने क्रॉस किया इसके बीच में, तो इसका एक गैमेट और दूसरे पेरेंट का एक गैमेट मिलके बनाया हमारा F1 जनरेशन. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी two characteristics, it is going to be one, right? So this is heterozygous for one trait, so इसको हम बोलते हैं monohybrid character, or we can say monohybrid. This is a hybrid क्योंकि हमारे पास इसका भी quality है, इसका भी quality है, so it is a hybrid. Okay, but it is talking about single characteristic, we are just talking about the single characteristic, so it is called monohybrid. Next is F1 generation. I told you F word has come from a Latin word filial, that means son and daughter. Then F2 generation, first के बाद का जो next क्रॉस के बाद जो रिजल्ट मिलता है, that is F2 generation. जब एक क्रॉस करेंगे you'll understand. Let's do one cross. Let's go to this page.
now let's try this out. This is a monohybrid cross. अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पेरेंट्स, हम लोग वी आर गोइंग टू जस्ट लुक एट दिस. These are the parents. Okay, parents would be 1 and 2, right? अब phenotype का मतलब दिखने में कैसे हैं. टॉल है, यहाँ दिखने में कैसे हैं? डॉर्फ है. अब उसका जीनोटाइप कैसे होना चाहिए? ये होमोजाइगस है, बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग इट. ओके, इट विल बी टॉल का टॉल इज डोमिनेंट, राइट? डॉर्फ इज नॉट डोमिनेंट, टॉल इज डोमिनेंट. तो टॉल का जो फर्स्ट लेटर है इट इज कैपिटल टी. सो कैपिटल टी, एंड यू नो इट एग्जिस्ट इन पेयर, सो 2 कैपिटल टी. तो ये एक पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और जीनोटाइप वी कैन से. अब डॉर्फ में टॉल का स्मॉल लेटर यूज़ किया जाएगा. कैपिटल टी यूज़ किया तो उसका स्मॉल लेटर होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ये हुए 2 पेरेंट्स. दोनों पेरेंट्स के जीनोटाइप क्लियर हो गए, फिनोटाइप भी क्लियर हो गए, राइट? दिखने में कैसा है, दैट इज़ फिनोटाइप. और हम जेनेटिकली कैसे उसको लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द जीनोटाइप. क्लियर? नाउ अब इनके गैमेट्स को हमने सेग्रीगेट करना है. गैमेट्स हैज़ टू बी रिटन. सो नेक्स्ट स्टेप इज गैमेट्स. सो इस पेरेंट का गैमेट कैपिटल टी, इस पेरेंट का गैमेट स्मॉल टी, राइट? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में आता है तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन. क्या बोलते हैं इसको? F1 जनरेशन, राइट? फर्स्ट जनरेशन. अब आप बोलोगे वाई ओनली 1 वी हैव रिटन? बिकॉज जो दूसरा होगा वो भी सेम ही होगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा ना. जीनोटाइप में कोई फ़र्क नहीं होगा, फिनोटाइप में कोई फ़र्क नहीं होगा. अच्छा, जीनोटाइप कैसे लिखा है? जीनोटाइप इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस इज़ द जीनोटाइप. हाउ इज़ द फिनोटाइप? मतलब ये दिखने में कैसा होगा? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट है? कैपिटल टी, नो. सो इट विल बी टॉल. तो हमें ये लिखना पड़ेगा उसके साथ ही. ओके, सो इतना क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, F1 से हमें F2 जनरेशन बनाना है. ओके, F1 से हम F2 जनरेशन बनाने के लिए हम लोगों को प्यूनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है. एंड हाउ डू वी डू इट? वी टेक द सेम स्पीशीज, क्रॉस इट विद द सिमिलर वेराइटी. मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 पेरेंट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 का है, उसका क्रॉस एग्जैक्टली सिमिलर पेरेंट के साथ किया जाता है. सो सेकेंड पेरेंट इज ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? नाउ अब हमारे पास गैमेट्स कौन से हैं? अब इसमें क्या हम बोल सकते हैं सिर्फ कैपिटल टी है गैमेट? नो, वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ गैमेट. वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी. और इस पेरेंट का गैमेट कितना है? 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट? नाउ वी हैव टू डू or we have to just combine them. They have to be brought together. So for that we have to make a chart. This chart is called as Punnett square. So let's read Punnett square. F1 generation is clear to everybody. What is F1 generation? It refers to the first filial generation. मतलब जितने भी ऑफस्प्रिंग फर्स्ट जनरेशन के होते हैं उसको बोलते हैं F1 जनरेशन. F2 जो सेकेंड जनरेशन होता है, जब F1 का सेल्फिंग हो जाता है. अभी हमने देखा ये हमारा F1 जनरेशन का रिजल्ट था, इसी के सेम क्वालिटी वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया. सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग. सिमिलर जीनोटाइप प्लांट इज यूज्ड. सो F1 का जब सेल्फिंग होता है तो हमें मिलता है F2 सेकेंड जनरेशन. दिस इज हाउ ही डिड इट, सो वी आर फॉलोइंग दैट मेथड. F2 जनरेशन. ओके, देन व्हाट इज Punnett स्क्वायर? Punnett स्क्वायर इज अ चेकर बोर्ड जो हम बनाते हैं.
It is drawn like this. Male gametes one side, फीमेल गैमेट्स वन साइड. सो हमने कौन सा लिया था गैमेट, याद है आप लोगों को? 2 पेरेंट के, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक पेरेंट का था, दूसरा पेरेंट का था कैपिटल टी और स्मॉल टी. तो कैसे लिखेंगे? मेल को यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, हम इसका लिख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड पेरेंट का, एंड स्मॉल टी. नाउ this capital T will come here, this capital T will come here, this small t will come here, this small t will come here. Now ऊपर के भी कैपिटल T आ जाएगा, ये वाला स्मॉल t भी यहाँ आ जाएगा, ऊपर का कैपिटल T यहाँ भी आ जाएगा, स्मॉल t यहाँ भी आ जाएगा. So what have we got? How many genotypes we have got? Let's count. ये एक जीनोटाइप है होमोजाइगस, और ये एक जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस. ओके, और ये एक जीनोटाइप है. सो व्हाट इज द रेशियो? इट इज 1:2:1 रेशियो, राइट. ये रेशियो किसका है? जीनोटाइप का रेशियो है. लेकिन फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा? फिनो मतलब दिखने में कैसा है, तो खुद ही बताओ दिखने में कैसा है. लेट्स से दिखने में कैसा है? फर्स्ट वाला, ये दिखने में कैसा है? टॉल. ये दिखने में कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो कैपिटल टी विल डिस्क्राइब इज डोमिनेंट, सो दिस इज ऑल्सो टॉल. हियर ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज ऑल्सो टॉल. Here no capital T, only small t, recessive characteristics, मतलब ये आएगा हमारा dwarf. ओके, सो इसका रेशियो हम कैसे लिखेंगे? इसका रेशियो आएगा 3:1, मतलब tall is to dwarf. Are you getting that? This was phenotypic ratio, and here what I have written 1:2:1 was genotypic ratio, right? So just understand this. I'm giving you a question. Now you have to solve it. Do the cross between round. We have 2 parents. One is having round seed and another is having wrinkled seed. Solve it and send it to me.